اور انہوں نے رقم دینے میں دیری کی۔ یونیورسٹی بننے میں ہوئی تاخیر کے سلسلے میں کشن گنج کے ایم پی مولانا اسرار الحق قاسمی کا یہ کہنا ہے۔ میں نے پرائم منسٹر سے کہا اور میں نے سونیا جی سے کہا، خاص طور پر سونیا جی نے ہماری اس میں بہت مدد کی، پرائم منسٹر نے بہت مدد کی، اور پھر قانونی مشورہ کیا، لا منسٹر نے اس کو کلیئر کیا۔ اس میں ہم کو 7 مہینے لگ گئے۔ 7 مہینے کے بعد ہم کو ان کا وہ ملا، اپروول ملا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا۔ اپروول ملنے کے بعد پھر اس کے بعد ڈی پی آر بنانے میں کافی ٹائم لگا۔ اس سنگ بنیاد تقریب کو لے کر کافی سیاست بھی ہوئی۔ پہلے ریاستی حکومت کو اس تقریب سے دور رکھا گیا تھا، لیکن جب ریاست کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے احتجاج درج کروایا تو انہیں دعوت نامہ روانہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار اس سنگ بنیاد تقریب میں موجود رہیں گے۔ ای ٹی وی نیوز، کشن گنج۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان نے کارپوریشن کے افتتاح کو اوقاف کے لیے تاریخی اقدام قرار دیا اور کہا کہ اس سے مسلمانوں کی ہمہ ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ Of management in India. The recent amendments to the Waqf Act and the establishment of NAWADCO will pave a way for professional management of Waqf properties in our country, inshallah. It will improve the conditions of Waqf in India and save this invaluable property from illegal encroachment, besides developing them as income-yielding assets for the social, economic development and educational empowerment of the Indian Muslims. وہیں نیشنل وقف کارپوریشن کی افتتاحی تقریب میں شریک متعدد ریاستوں کے وزراء نے حکومت کے اقدام پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ 25 دن رہ گیا کچھ کام کرنے کے لیے، کانگریس سرکار نے جو بھی قدم اٹھایا ہو بھلا بولا جو، لیکن اس میں کچھ ہونے کو نہیں ہے۔ یہ قدم پہلے اٹھایا ہونا چاہیے تبھی کچھ ہوتا ہی۔ اب تو لوگ ایک ہی بات سمجھ رہے ہیں پورے دیش کے لوگ، تو یہ جو کیا ہے چناوی ہتھکنڈا ہے، چناؤ میں لوگ نبھانے کے لیے مسلمان لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں سے بھی ڈیموکریسی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آج کا جو ڈیٹ ہے، ٹائم ہے، وہ امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہے، اور یہ اب شروع کر رہے ہیں۔ 10-15-20 دن میں چناؤ اناؤنس ہونے والا ہے، آچار سنہتا لگ جائے گا۔ تو آچار سنہتا میں کیا کام کریں گے؟ صرف یہ ہے کہ اس کو دکھا کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل ہم کریں، یہی ان کی ذہنیت ہے۔ اس میں کافی دقت ہوتی ہے، پولیس اس کو پہلے وہ جو ایف آئی آر بنانے میں اور انویسٹیگیشن کرنے میں، اور ہمارا جو سٹاف کا جو جس کی کمی ہے، کافی کمی ہے۔ ایک انسپیکٹر یا کچھ لوگ ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، جب ایک وقف انسپیکٹر جاتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی اور کافی دقت ہو رہی ہے۔ کارپس یہاں پہ رہے گا اور بہت سارے جب وقف پراپرٹی کمرشل ہر فرسٹ کاؤنٹر کرناٹک کے اندر تقریباً 2000 ایسے وقف پراپرٹی ہیں جہاں کمرشلی ڈیولپ کر کے ماہانہ 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک انکم آنے والے چانسز ایسے ہیں۔ ان کے وہ بتولیں کے پاس فائنینشیل یہ اسسٹنس نہیں ہے، فائنینشیل ہیلپ نہیں ہے، اس لیے وہ اسے ہی پڑھے، کئی سالوں سے پڑھے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی ڈیولپ کریں۔ مانیٹری افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا کے ان کا یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور یہ تو میرا یہ ماننا کہ اگر یہ بہت پہلے تھوڑا سا اور کرتے ہیں یہاں پہ 6 مہینہ سال پہلے یہاں پہ، تو یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے یہاں پہ۔ خیر دیر سے یہ آئے تھے، یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور اس سے مسلمانوں کو جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا یہاں پہ۔ اور کوئی ایسا کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کوئی سے یہ ہوگا، لیکن یہ بہت ہی اچھا مسلمانوں کے لیے جو ہے حق میں جو ہے بہت ہی اچھا رہے گا۔ وقف امور کے ماہر اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر محمود نے وقف کارپوریشن کے قیام کو اوقاف کے لیے کارآمد بتایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقف کے تعلق سے سچر کمیٹی کی سفارشات کا مکمل نفاذ نہیں ہو پایا ہے کہ آج جنوری ختم پہ ہے اور مارچ میں غالباً یہ لگ جائے گا الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ، تو مہینہ بھر پہلے نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن 7 سال کے انتظار کے بعد انہوں نے بنا دیا، چلیے ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن بہت ہی کام کی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ مطلب اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ اس کا نفاذ اچھی طرح سے نہیں ہوگا، ہوگا ضرور ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ اتنی اچھا طرح ہوگا جس طرح کوئی بھی کام ہوتا ہے، وہ اچھا کہیے یا برا کہیے، جس طرح کوئی بھی کام ہوتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ گورنمنٹ کا، اسی طرح سے یہ کام بھی ایسے ہی ہوگا۔
खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। – 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है। मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो इख्तियार दीजिए, जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको इख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिन्ना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासरीन के दुखों की कोई इंतहा नहीं। शामली रिलीफ कैंप में एक और बच्ची मौत के मुंह में चली गई। हुक्काम के मुताबिक बच्ची निमोनिया के जद में आ गई थी। उधर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में मुजफ्फरनगर जिले में 3 नौजवानों के कत्ल के केस में पुलिस ने 9 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में आए दिन कोई न कोई नुक़्ता-ए अजल बन रहा है। शदीद ठंड और सहूलियात की अदम मौजूदगी के सबब पनाह गजीनों की मुश्किलें सिवा हो गई हैं। मलिकपुर गांव के कैंप में एक 4 साला बच्ची की मौत हो गई है। ठंड के सबब उसे निमोनिया हो गया था। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के सुपरिंटेंडेंट ने ये इत्तला मीडिया को दी। इस कैंप में गुज़श्ता हफ्ते एक 5 साला बच्ची की मौत वाक़ई हो गई थी। उधर शाहपुर गांव में 48 साला एक खातून की मौत मंगल के रोज हुई थी। खातून का ताल्लुक काकड़ा गांव से था। उधर कौमी अक़लियती कमीशन की एक टीम ने मंगल के रोज मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के हवाले से किए जा रहे इक़दामात पर जिला हुक्काम से बातचीत की थी। 7 सितंबर 2013 से 20 दिसंबर 2013 तक मुजफ्फरनगर और शामली में 34 बच्चों की मौत हो गई थी। उनमें 12 बच्चों की मौत रिलीफ कैंपों में, जबकि 22 बच्चों की मौत मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई थी। इस बीच पुलिस ने 30 अक्टूबर को मोहम्मदपुर राय सिंह गाँव में 3 नौजवानों के कत्ल केस में 9 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस कत्ल केस में 15 अफराद को मुलजिम बनाया गया था। पुलिस ने उनमें से 9 को गिरफ्तार किया था। SIT के मुताबिक फसादात और उससे जुड़े मुख्तलिफ मामलों में 683 अफराद मुबैना तौर से मुलविस पाए गए हैं। उनमें 240 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 46 ने खुद सुपुर्दगी की थी, जबकि 11 को मुर्दा पाया गया था। SIT ने फसादात और उससे जुड़े 30 मामलों की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। उत्तर प्रदेश हुकूमत का मदरसा इजलास नतायज के एतबार से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। इजलास में शरीक मंदूबीन के मुताबिक सिर्फ खुशनुमा ऐलानात से मदारिस के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए ठोस इक़दामात करने की जरूरत है। आप मदरसों के शिक्षकों को 22 कि जितना ये चाह रहे हैं उससे थोड़ा सा कम कर देंगे। हाँ, यही है, ये असली वजह ये है कि जितनी आप मांग कर रहे हैं उससे थोड़ा कम करने की, और भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। इसलिए मानदेय आपका बढ़ाने का फैसला सरकार लेगी, ले लिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव सरकार से मंजूर शुदा मदारिस के इजलास में असातिज़ा के लिए जब खुसूसी मराद का ऐलान कर रहे थे, उस दौरान मंदूबीन के बीच से आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। वजीर अक़लियती फलाह बहबूद आजम खां मौके की नजाकत को भांपते हुए डाइस तक पहुंचे और वजीर आला से सिफारिश की। दरअसल मदारिस के मुंतज़मीन जो उम्मीदें लेकर आए थे वो टूटती हुई नजर आईं। इसमें कोई बात मदरसा आधुनिकीकरण के लिए या उनकी स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई
जिस पे अमल दरामद हो सके। और ये कि इतना बड़ा झूठ इस सरकार ने बोला कि वो जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना है वो केंद्र सरकार की है, इन्होंने अपनी किताब में उसे जोड़ रखा है कि ये हम देते हैं पैसा, जबकि वो केंद्र सरकार की योजना है। मुसलमानों के खाते खुलवाए जाते हैं अव्वल से 5वीं तक के बच्चों के, और उनके खाते नहीं खुलते। इस साल 50% छात्रवृत्ति कुल मिल सके मुसलमानों को। मदारिस अरबिया टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में 150 मदरसों को ग्रांट ऑन एड पर लेने का ऐलान किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसी तरह मदरसा असातिज़ा की तनख्वाहों से मुताल्लिक रिजवी कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ है। मदारिस के फलाह बहबूद के लिए ही गवर्नमेंट बनाई गई है। 2 सालों से चूंकि ये समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम मदारिस के मफाद में काम करेंगे, मदरसों को ग्रांट लिस्ट में लेंगे, लेकिन 2 सालों में जो मदारिस के मसाइल हैं उन मसाइलों पर कोई अभी संतोषजनक है वो काम अभी नहीं हुए हैं। सरकार ने असातिज़ा के एजाजिया में इजाफे का ऐलान करके राहत देने का काम किया है। असातिज़ा के लिए एजाजी अवार्ड और मदरसे के तलबा को दिगर तालीमी इदारों की तरह खेल कूद और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए फंड फराहम कराने का ऐलान खुश आइंद साबित हो सकता है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। खबर मगरबी बंगाल से है, जहां आज तृणमूल कांग्रेस के ब्रिगेड रैली है। इस रैली से वजीर आला ममता बनर्जी खिताब करेंगी। रैली में लाखों की भीड़ के जमा होने का दावा किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि भीड़ को जमा करने के लिए मौलाना बरकती भी मुहिम चला रहे हैं। ताहम आइम्मा और मोज़िनीन ने मौलाना बरकती पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। इमाम के लिए फर्ज है। সোনাপুরের কাছে ये ममता बनर्जी जो इमाम मुअज्जिन के लिए किया, इसलिए इमाम मुअज्जिन लोग भी गेटफुल है। कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के बैनर की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह से किसी का जाने का या हम लोगों ने कोई अपील नहीं किया है। तो हम किसी खास पार्टी के बन जाएं, कोई दूसरे लोग कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बन जाए, बीजेपी का नुमाइंदा बन जाए, तो ये तो इमाम के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी फलाह बहबूद का काम खटाई में पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग के ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के इस एजेंडे में ये चीज़ नहीं है। हाँ, हुकूमत अगर बुलाती है या हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हुकूमत से हम बात भी करेंगे, जाएंगे भी। तनख्वाह देने की सूरत में इमामों को अपना पॉलिटिकल कैडर के हिस्से से इस्तेमाल करने के एक रुझान पाया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद की जो इमाम और अइम्मा की तंजीम है, मजलिस उलमा वल अइम्मा, ये इस रैली में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। बल्कि हमें सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। हम ये अपील करेंगे तमाम इमामों से कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें। कर्नाटक के वजीर बराए हज आर रोशन बेग ने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत सफर हज के लिए निजी टूर ऑपरेटर्स पर लगाम कसे। बेंगलुरु में हज 2014 के दरख्वास्त फॉर्म के इजरा के बाद रोशन बेग ने कहा कि बेशतर निजी टूर ऑपरेटर सफर हज और उम्रा को खिदमत के बजाय तिजारत में तब्दील कर चुके हैं। कर्नाटक की रियासती हज कमेटी ने हज 2014 के लिए अपनी तैयारियों का आगाज किया है। बेंगलुरु में रियासत के वजीर हज आर रोशन बेग ने हज 2014 के दरख्वास्त फॉर्म का इजरा किया। इस मौके पर रोशन बेग ने कहा कि हज कमेटी को मिलने वाले आज़मीन हज के मौजूदा कोटे में किसी तरह कमी नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में कर्नाटक वजारत हज ने मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद को मकतूब लिखा है। मगर ये चंद सालों से पता नहीं ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का, उसमें ये नहीं कहता कि कुछ अच्छे हजरात भी हैं, कुछ टूर ऑपरेटर्स अच्छी खिदमत भी कर रहे हैं, मगर एक माफिया सा हो गया है। गली गली कुछ कुछ में हज की ऑफिस, कौन बोले मैं हज की ऑफिस हज को भेजूं, क्या वो कर रहा काम, पहले काम नहीं से बेकार आदमी क्या कर रहा बोले तो रियल एस्टेट करो, अब कौन क्या करूंगा मैं हज को भेजूं। कर्नाटक हज कमेटी के मुताबिक इस मरतबा हज फॉर्म भरने के अमल को आसान बनाया गया है। मीटिंग में शिया नुमाइंदों ने हज कमेटी से दरखास्त की कि कमेटी शिया आज़मीन हज को अलग फ्लाइट में सफरे हज पर
भेजने का इंतजाम करें। 1 फरवरी से लतीफ साहब 1 फरवरी से 15 मार्च तक हम फॉर्म लेंगे। और इस बार फॉर्म आप देख लीजिए, फॉर्म में थोड़ी बदलाव किया गया, उसको थोड़ी आसानी हो गई इस बार फॉर्म में, तो इस बार हाजियों को फॉर्म फिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। शिया कम्युनिटी के जो नुमाइंदे जाएंगे हज को, जो पिलग्रिम्स जाएंगे हज को, हमारी गुजारिश है कि उनकी एक सेपरेट ग्रुप बनाई जाए और एक आलिम उनको लीड करें, ये हमारी गुजारिश थी। वजीर हज रोशन बेग ने बताया कि हज घरों की तामीर के सिलसिले में मजीद फंड फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत से दरखास्त की गई है। रोशन बेग ने कहा कि हज के अलावा उम्रा के लिए भी हज कमेटियों को इजाजत देने के सिलसिले में मरकजी वजारत खारजा से गुफ्तगू की जाएगी। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे। लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तालीम के मैदान में अपने जौहर दिखाने वाले होनहार मुस्लिम बच्चों की दिल्ली में हौसला अफजाई की गई। अल हरमैन एजुकेशनल सोसाइटी और गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के इश्तराक से यह प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री का कहना था कि दिल्ली हुकूमत उर्दू स्कूलों को नजरअंदाज नहीं करेगी। दिल्ली में उर्दू मीडियम के 13 सरकारी स्कूल हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों की एक बड़ी तादाद है। ताहम हुकूमती सतह पर इन स्कूलों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोई स्कीम नहीं है। इसके अलावा किताबों का न मिलना, असातिज़ा की कमी, लेकिन इन सब के बावजूद उर्दू स्कूलों के तलबा ने इस मरतबा बेहतरीन मुजाहरा किया है। तकरीब में मौजूद आदर्श शास्त्री ने असातिज़ा की कमी के ताल्लुक से कुछ यूं राय जाहिर की। एजुकेशन पे ओवरऑल पार्टी का बहुत फोकस है, अरविंद जी का बहुत फोकस है। मनीष सिसोदिया जी ने ये बोला भी है कि आज दिल्ली में हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो अच्छे अध्यापकों की है और केवल
اردو نہیں ہر بھاشا میں یہ دقت آ رہی ہے, ہندی میڈیم اور اردو ہر جگہ یہ پرابلم ہے. تو اس کے لیے نیتیاں بنائی جا رہی ہیں. منیش جی اسی پہ سب سے زیادہ سکشم ہے آج, کہ سب سے زیادہ فوکس اسی پہ ہے کہ صحیح ادھیاپک اور ادھیاپک کی کوالٹی کیسے بہتر کی جائے. تو اس میں جو وچار اور جو ایک پالیسی بن رہی ہے وہ سب سامنے رکھی جائیں گی کچھ سمے میں آنے. اس پروگرام میں 52 اسکولوں کے مسلم طلبہ نے شرکت کی. تعلیمی سال میں 100% نتیجہ دینے والے طلبہ اور اساتذہ کو اعزاز سے نوازا گیا. سروودے کنیا ودیالیہ جامع مسجد کی شبانہ نذیر کے حصے میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آیا. 10th ٹاپر پرائز دیا گیا ہے. میں اسکول ٹاپ کرا تھا, 8.8 CGPA تھی, اور میں فیوچر میں CA بننا چاہتا ہوں. میرا نام سبیحہ خاتون ہے اور میں شاہین باغ کی رہنے والی ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میری ماں باپ کی محنت کا پھل مجھے ملا. اس پروگرام میں NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین, شفیع دہلوی اور حج کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر پرویز میاں کے علاوہ پروفیسر اختر الواسع اور دہلی کی معزز ہستیاں موجود تھیں. جلسے میں طلبہ نے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے. ETV نیوز نئی دہلی. عالمی رابطہ ادب اسلامی کے تحت 1 فروری کو بنگلورو میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کے حیات و خدمات پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. جنوبی ہندوستان کے معروف دینی درسگاہ سبیل الرشاد میں منعقد ہونے والے اس سیمینار میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید رابع حسنی ندوی شرکت کریں گے. سیمینار میں مولانا علی میاں کی خدمات پر مقالے پیش کیے جائیں گے. بس ٹھیک ہے, حضرت نے فرما دیا. کئی سیمینار ہو چکے ہیں. اب یہ سیمینار حضرت علی میاں صاحب کے بارے میں ہو رہا ہے, ان کی حیات و خدمات کے بارے میں. 1 فروری 2014 سنیچر کا دن 10 بجے سے 2 بجے تک. ممبئی کے سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم کو نیشنل کمیونل ہارمونی ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ مرکزی حکومت کے وزارت داخلہ کی طرف سے یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں. معروف سماجی کارکن اور دانشور مرحوم اصغر علی انجینئر نے 1993 میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی جس کا نام رکھا سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم. اصغر علی انجینئر نے تو دنیا کو خیر آباد کہہ دیا, لیکن ان کا قائم کردہ سینٹر آج بھی ایک تحریک کی شکل میں اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے. اس سینٹر کا مقصد فرقوں کے بیچ ہم آہنگی پیدا کرنا, اتحاد و بھائی چارہ کو فروغ دینا اور معاشرے میں ایک توازن بنائے رکھنے کی کوشش کے ساتھ ہندو مسلمانوں کے بیچ ایک دوسرے کے بارے میں پھیلی غلط فہمیاں دور کرنا شامل ہیں. بہت ساری غلط فہمیاں دونوں کمیونٹی کو ایک دوسرے کے بارے میں ہے, اور زیادہ مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. مسلمانوں نے تاریخ میں مندر توڑے, مسجدیں بنائی ان جگہ پر, اور کمیونل پالیٹکس کے چلتے یہ زیادہ پاپولر ہو گئے یہ متس. پھر سارے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, لیکن سبھی ٹیررسٹ مسلمان ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی عام ہو گئی ہے لوگوں کے من میں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان غلط فہمیوں کو لوگوں کے ذہن سے نکالیں. ادارے نے قومی یکجہتی کی فضا قائم کرنے اور سیاسی مفاد کے لیے پھیلائی جانے والی فرقہ وارانہ منافرت کے تئیں عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے انگنت سیمینار, اجلاس, ٹریننگ کیمپ, نکڑ اجلاس اور ورکشاپ کا انعقاد کیا. I think there is lack of awareness as far as secularism, minority concept, and also about living with harmony. Everybody has parochial differences, and in India especially, the weaknesses the politicians make use of, and then they make it into a political issue. With the result, the communal harmony is spoiled. اصغر علی انجینئر کو ان کی خدمات کے لیے کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. 1998 میں انہیں کمیونل ہارمونی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اب یہ ایوارڈ ان کے ادارے کو دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. ETV نیوز ممبئی. تو خاص بات میں فی الحال اتنا ہی. 10 بجے خبرنامے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آمین.
एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम अधूरे चांद की वो अधूरी रात, होठों पर दम तोड़ती, अनकही अनसुनी वो अधूरी बात, वो कुछ अजनबी सा, कुछ जाना सा, अधूरी रही मुलाकात, लेकर गम सारे मेरे, बदले में गम भी न दिया अपना, कैसे दूं इस रिश्ते को कोई नाम, अधूरे चांद की वो अधूरी रात। जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जाग उठे होठों की शहनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कोई ना कोई शिकायत है, और ज्यादातर ये शिकायत है अधूरेपन की, कहीं बात के अधूरे रह जाने की, तो कहीं मुलाकात के अधूरे रह जाने की, कहीं दिन अधूरा लगता है तो कहीं तन्हाई की रात अधूरी लगती है। इस अधूरेपन को दुनिया की कोई भी दौलत पूरा नहीं कर सकती है। इस खालीपन को सिर्फ एक वो इंसान भर सकता है जो सिर्फ आपके लिए बना है। कहीं तो मिलेगी बहारों की